آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ بہت دلچسپ اور حقیقت سے مبنی کہانی ہے۔ کہانی ایک ایسے دیہاتی لڑکے کی ہے جو وڈیروں کے ظلم سے تنگ آ کر ڈاکو بنا اور پھر وڈیرے سے اپنے خاندان پر ہوئے ظلم کا بدلہ لیا اور پھر ایک کامیاب بزنس مین بنا۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سجاد کا گاؤں سرسبز پہاڑوں اور گھنے درختوں کے درمیان بسا ہوا ایک پرانا گاؤں تھا۔ وہاں کے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے، کھیتوں میں کام کرتے اور مویشی پالتے۔ زیادہ تر لوگ محنتی اور دیانتدار تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف طاقتور لوگوں کی چاپلوسی کرتے تھے۔ سجاد ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا والد رشید ایک محنتی کسان تھا جو دن رات کھیتوں میں کام کرتا، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں کبھی 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی۔ گاؤں میں امیر اور غریب کے درمیان ایک گہری خلیج تھی۔ امیر لوگ اپنی حویلیوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، جبکہ غریب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے۔ گاؤں کے سب سے طاقتور شخص کا نام ملک اکرام تھا۔ وہ گاؤں کا وڈیرا تھا اور پورے علاقے پر اپنی مرضی چلاتا تھا۔ اس کے پاس وسیع و عریض زمینیں، کئی حویلیاں، بے شمار نوکر چاکر تھے۔ ملک اکرام کے ظلم و ستم کی کہانیاں پورے علاقے میں مشہور تھیں۔ جو اس کی بات نہ مانتا وہ یا تو غائب کر دیا جاتا یا اس پر جھوٹے مقدمے بنا کر جیل بھجوا دیا جاتا۔ ایک دن ملک اکرام کے آدمی سجاد کے گھر آئے اور اعلان کیا کہ ان کی زمین اب وڈیرے کی ملکیت ہے۔ سجاد کے والد رشید نے مزاحمت کی، لیکن جواب میں ملک اکرام کے ہنڈوں نے اسے سریعام گاؤں کے چوراہے پر بے رحمی سے پیٹا۔ سجاد کی ماں زینب اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ہنڈوں نے اسے دھکے دے کر زمین پر گرا دیا۔ یہ زمین اب ہماری ہے، ملک اکرام کے آدمیوں میں سے ایک نے دھاڑ کر کہا۔ اگر تم لوگ زیادہ بولے تو تمہاری لاشیں بھی یہاں نظر نہیں آئیں گی۔ رشید کے سامنے ہی اس کی بیوی کو مار دیا گیا۔ سجاد اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے والد اور چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح زخمی کر دیا گیا۔ سجاد نے اپنی ماں کو روتے ہوئے گود میں لیا، لیکن وہ آخری سانسیں لے چکی تھی۔ سجاد بھاگتا ہوا گاؤں کے تھانے پہنچا۔ وہ سانس پھولتے ہوئے پولیس کے سامنے جا گرا اور فریاد کی، میری ماں کو مار دیا، وڈیرے کے آدمیوں نے میرے والد اور بھائی کو زخمی کر دیا، خدا کے لیے انصاف کریں۔ لیکن پولیس افسر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور میز پر بیٹھے بیٹھے اپنا حقہ پینے لگا۔ بیٹا، تمہیں معلوم نہیں کہ ملک اکرام کون ہے؟ ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ سجاد کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اسی وقت دروازہ زور سے کھلا اور ملک اکرام کا آدمی اندر داخل ہوا۔ صاحب، یہ لڑکا چور ہے، اس نے وڈیرے کے گودام سے سونا چرانے کی کوشش کی ہے۔ پولیس افسر نے سجاد کو گھورا، پھر سپاہیوں کو حکم دیا، لے جاؤ اسے، آج سے یہ جیل میں رہے گا۔ سجاد حیران اور بے بس تھا۔ اس نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، لیکن اسے ہی جیل میں ڈال دیا گیا۔ سپاہیوں نے اسے گھسیٹ کر حوالات میں ڈال دیا، جہاں اس کی نئی زندگی شروع ہونے والی تھی۔ جیل میں سجاد کو کئی خطرناک قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا۔ ان میں کچھ تو عام چور تھے، لیکن کچھ بہت ہی ماہر ڈاکو اور مجرم تھے۔ لڑکے، تو نیا ہے؟ ایک لمبے قد کے ڈاکو نے سجاد سے پوچھا۔ ہاں، مجھے بے گناہ پکڑا گیا ہے۔ ہا ہا ہا، ڈاکو ہنسا۔ یہاں سب یہی کہتے ہیں، لیکن یاد رکھ، یہاں یا تو طاقتور بنتے ہیں یا مایوس ہو کر مر جاتے ہیں۔ سجاد نے غور سے ان ڈاکوں کی باتیں سنی۔ وہ کیسے لوٹ مار کرتے، پولیس کو چکما کیسے دیتے اور جنگل میں چھپتے تھے۔ سجاد نے یہاں ایک نیا سبق سیکھا، اگر دنیا تمہیں انصاف نہ دے تو تمہیں خود اپنی طاقت پیدا کرنی ہوگی۔ کئی سال بعد جب سجاد جیل سے باہر آیا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے چھوٹی موٹی چوریاں شروع کی، کبھی کسی دکان سے پیسے اٹھا لیتا، کبھی کسی مالدار شخص کا سامان چرا لیتا، لیکن ایک دن ایک بڑی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ وہ ایک رئیس آدمی کے گھر میں چوری کر رہا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ پکڑ لو اسے، پولیس نے آ کر اسے گھیر لیا۔ سجاد نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک سپاہی نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ چند سال بعد جب وہ دوبارہ باہر نکلا تو اس کا ذہن مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب وہ ایک عام چور نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے ڈاکوؤں کا ایک گروہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جنگل میں جا کر چھپ گیا اور وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مضبوط ٹھکانہ بنایا۔ سجاد اور اس کے ساتھی صرف امیر لوگوں کو لوٹتے تھے۔ وہ رئیسوں کے گھروں پر ڈاکے ڈالتے، سونا اور پیسے چھینتے اور اس میں سے زیادہ تر حصہ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ ایک دن اس کے آدمیوں نے آ کر بتایا،
सरदार, इस गांव में एक गरीब लड़की की शादी है, मगर उसके वालिद के पास पैसे नहीं है। सज्जाद मुस्कुराया और अपने आदमियों को हुक्म दिया, ये रकम ले जाओ और उस शादी के तमाम अखराजात पूरे करो। देखते ही देखते वो डाकू लोगों की नजरों में एक निजात दहिंदा बन गया। गरीब लोग इसे इज्जत देने लगे और उसे जंगल का बादशाह कहने लगे। सज्जाद के अंदर एक ही जज्बा था, इंतकाम। वो बरसों पहले का वो दिन नहीं भूला था जब मलक इकराम के आदमी ने उसके माँ बाप पर जुल्म किया था, उसकी माँ को बेदर्दी से मार दिया था, उसके वालिद और भाई को जख्मी किया था और उसे झूठे इल्जाम में जेल भिजवा दिया था। अब सज्जाद सिर्फ एक आम चोर या डाकू नहीं था, बल्कि उसके पास एक पूरा गिरोह था जो हर हुक्म पर जान देने को तैयार था। अब वक्त आ गया है, सज्जाद ने अपने आदमियों के सामने खड़ा होकर कहा, हम मलक इकराम को वही तकलीफ देंगे जो उसने हमें दी थी। आज वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। रात की तारीकी में सज्जाद और उसके डाकुओं का गिरोह मलक इकराम की हवेली की तरफ रवाना हुआ। हर कोई हथियारों से लैस था। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, सज्जाद ने इशारा किया और वो सब खामोशी से दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल हो गए। मलक इकराम के गार्ड्स को अंदाजा भी ना था कि क्या होने वाला है। अचानक खामोशी में गोलियों की आवाज गूंजी और चंद ही लम्हों में कई गार्ड जमीन पर गिर गए। मलक इकराम कहाँ है? सज्जाद धाड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। वो पूरी हवेली में मलक इकराम को ढूंढ रहा था, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। तभी एक दरवाजा खुला और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मलक इकराम ने पहले ही हमले की खबर सुनकर अपने आदमियों को तैयार कर रखा था। इसके लोग जवाबी हमला करने लगे। कुछ देर तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी रही, लेकिन मलक इकराम किसी तरह पीछे के दरवाजे से फरार होने में कामयाब हो गया। सज्जाद को जब पता चला कि मलक इकराम की एक बेटी है जो शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो उसके दिमाग में एक नया मंसूबा आया। अगर वो मलक इकराम की बेटी को अगवा कर ले तो शायद मलक इकराम खुद सामने आ जाए। कई दिनों तक सज्जाद के आदमी उसकी बेटी ज़ैनब की नकलो हरकत पर नजर रखते रहे। फिर एक दिन जब ज़ैनब यूनिवर्सिटी से छुट्टियों पर घर जा रही थी, सज्जाद और उसके आदमियों ने हमला कर दिया। गाड़ी के सामने अचानक एक बड़ी जीप आकर रुकी और चंद मसलह अफराद बाहर निकले। ज़ैनब के मुहाफिजों ने मुजाहमत करने की कोशिश की, मगर वो बेबस हो गए। सज्जाद खुद आगे बढ़ा, ज़ैनब का बाजू पकड़ा और सख्त लहजे में बोला, चल मेरे साथ। ज़ैनब पहले तो चीखी चलाई, मगर सज्जाद के आदमियों ने उसे जल्दी से गाड़ी में धकेल दिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में एक खुफिया ठिकाने में ले जाकर ज़ैनब को कैद कर दिया गया। सज्जाद इसके साथ सख्त रवैया रखता था, उसे कैदी की तरह रखता और बात भी तल्ख लहजे में करता। मुझे यहाँ से जाने दो, ज़ैनब ने गुस्से से कहा। अगर तुम्हारा बाप सामने आ गया तो चली जाना, सज्जाद ने सर्द लहजे में जवाब दिया। लेकिन ज़ैनब को हकीकत का पता था। वो जानती थी कि इसका बाप एक जालिम इंसान है। वो जानती थी कि सज्जाद झूठ नहीं बोल रहा। जो वक्त गुजरता गया, ज़ैनब ने सज्जाद के बारे में मज़ीद जानना शुरू कर दिया। सज्जाद की आंखों में वो दर्द था जो एक मजलूम का होता है। ज़ैनब ने महसूस किया कि सज्जाद ने जो कुछ किया वो सिर्फ अपने खानदान की बर्बादी का बदला लेने के लिए कहा। तुम वाकई एक डाकू हो, मगर मेरे बाप से तो बेहतर हो, ज़ैनब ने एक दिन आहिस्ता से कहा। सज्जाद चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ न बोला। वक्त के साथ ज़ैनब को एहसास होने लगा कि वो सज्जाद को पसंद करने लगी है। वो इसकी बहादुरी और इंसाफ पसंदी को देखकर मुतासिर हो रही थी। सज्जाद अब मलक इकराम को खत्म करना चाहता था, लेकिन इसे तलाश करना आसान नहीं था। वो मुसलसल पुलिस के साथ अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और कई जगह छिपता फिर रहा था। एक दिन सज्जाद के एक आदमी ने इतला दी, मलक इकराम कल रात अपनी खुफिया हवेली में आएगा, जहां वो अपने खास लोगों से मुलाकात करेगा। ये बेहतरीन मौका है। सज्जाद ने फैसला किया कि वो खुद वहां जाएगा और इस बार मलक इकराम को नहीं छोड़ेगा। रात की तारीकी में सज्जाद और उसके आदमी खामोशी से मलक इकराम की खुफिया हवेली के करीब पहुंचे। हवेली के इर्द गिर्द पहरेदार थे, लेकिन सज्जाद के लोग खामोशी से एक एक करके इन्हें खत्म करते गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, फायरिंग शुरू हो गई। मलक इकराम के गार्ड सख्त मुजाहमत कर रहे थे, लेकिन सज्जाद और उसके आदमी तेजी से आगे बढ़े। आखिरकार सज्जाद मलक इकराम के कमरे तक पहुंच गया। अब बचकर कहां जाएगा, सज्जाद ने पिस्टल तानते हुए कहा। मलक इकराम खौफजदा होकर पीछे हटने लगा। देखो, तुम जो चाहते हो मैं दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी चाहता हूँ, सज्जाद ने कहा और एक ही गोली चला दी। मलक इकराम वहीं गिर गया। वो शख्स जो अपनी ताकत के नशे में दूसरों को जुल्म का निशाना बनाता था, आज खुद अपने अंजाम को पहुंच चुका था। जब ज़ैनब को अपने बाप की मौत की खबर मिली तो वो पहले बहुत गुस्से में आई। तुमने मेरे बाप को मार दिया, उसने चीख कर कहा।
वो तुम्हारा बाप था, लेकिन मेरे खानदान का कातिल भी था, सज्जाद ने सख्त लहजे में कहा। ज़ैनब ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता आहिस्ता सज्जाद की बात को समझ गई। वो जानती थी कि उसका बाप एक जालिम शख्स था और जो कुछ हुआ वो एक ना एक दिन होना ही था। चंद दिनों के बाद जब सब कुछ पुरसुकून हो गया, ज़ैनब ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी दुनिया में शामिल कर लो। सज्जाद हैरान रह गया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी चमकने लगी। ये जंगल अब तुम्हारा भी है, सज्जाद ने मुस्कुराकर कहा। यूं ज़ैनब ने अपना पुराना घर छोड़ दिया और सज्जाद के साथ नई जिंदगी गुजारने लगी। जंगल अब उसका नया घर था, वो सज्जाद और वो शख्स जिसे वो दिल से चाहने लगी थी। सज्जाद और ज़ैनब की जिंदगी अब जंगल में सुकून से गुजर रही थी। सज्जाद के आदमी अब भी डाके डालते, मगर वो हमेशा अमीरों को निशाना बनाते और गरीबों में बांटते थे। ज़ैनब ने भी इस नए तर्ज जिंदगी को कबूल कर लिया था और वो सज्जाद के साथ जंगल में खुश थी। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर कायम न रह सकी। एक दिन ज़ैनब को खबर मिली कि उसके चचा यानी मलक इकराम के बड़े भाई उनकी जमीनों और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके चचा को हमेशा से उन जमीनों पर नजर थी, मगर मलक इकराम की मौजूदगी में वो कुछ न कर सके। लेकिन अब जब मलक इकराम मर चुका था और ज़ैनब की माँ अकेली थी, तो वो जबरदस्ती उनसे सब कुछ छीनना चाहते थे। ज़ैनब ये खबर सुनकर बेचैन हो गई। इसने फौरन सज्जाद को बुलाया। हमें फौरन वापस जाना होगा, मेरी माँ अकेली है और चचा उन पर जुल्म कर रहे हैं। सज्जाद ने पहले इनकार किया। ये सब कुछ तुम्हारे खानदान की सियासत है, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। मैं डाकू हूँ और मेरा रास्ता अलग है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ अकेली है सज्जाद, मेरे अब्बू की मौत के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गई है और अब मेरे चाचा उन पर जुल्म कर रहे हैं। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं अकेली चली जाऊंगी। सज्जाद ज़ैनब की हालत देखकर खामोश हो गया। इसे एहसास हुआ कि उसकी जिम्मेदारी भी है। आखिरकार वो ज़ैनब के साथ चलने पर राजी हो गया। जब वो अपने गांव वापस पहुंचे तो ज़ैनब की मां ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। फिर जब उन्होंने सज्जाद को देखा तो वो उसके करीब आई और कहा, बेटा अब ये सब कुछ तुम्हारा है। मलक इकराम का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मेरी बेटी अकेली नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम ये कारोबार और जमीनें संभालो। तुम एक बहादुर इंसान हो और मैं जानती हूँ तुम इसे अच्छे तरीके से चला सकते हो। सज्जाद ने फौरन इनकार कर दिया। मैं कारोबार के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मैं ये सब नहीं ले सकता। मगर ज़ैनब की माँ ने इसरार किया। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है सज्जाद, ये सब तुम्हारे लिए है। अगर तुमने इनकार किया तो मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। सज्जाद अभी भी तसबुज़ब में था, लेकिन ज़ैनब ने भी इसे मनाने की कोशिश की। सज्जाद, हम हमेशा जंगल में नहीं रह सकते। अगर हमारे पास मौका है कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सके तो हमें इसे कबूल कर लेना चाहिए। आखिरकार सज्जाद मान गया। वो वापस जंगल चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद ज़ैनब और उसकी माँ की मुसलसल दरख्वास्तों के बाद वो हमेशा के लिए गाँव आ गया। अब उसने मलक इकराम की तमाम जमीनें और कारोबार संभालना शुरू कर दिया। सज्जाद को कारोबार का ज्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन वो होशियार और समझदार था। उसने ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया और जल्द ही वो कारोबार में तरक्की करने लगा। उसने जमीनों की पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद तरीके अपनाए और कई फैक्ट्रियां लगाई। अब वो एक अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी। वो हमेशा गरीबों की मदद करता। अगर किसी के पास शादी के लिए पैसे ना होते तो उनकी मदद करता। अगर किसी के घर में खाने के लिए कुछ ना होता तो वो उन्हें राशन फराहम करता। गांव के लोग जो पहले इसे एक डाकू समझते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे थे। पहले वो छुप कर रहता था, मगर अब लोग इसे इज्जत से बुलाते तो उनके पास अपने मसाइल लेकर आते। सज्जाद अब सिर्फ एक साबका डाकू नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसे पूरा गांव मानता था। अब वो एक कामयाब बिजनेसमैन था और लोगों के दिलों में उसके लिए एहतराम था।